Bismillahirrahmanirrahim. Let's start with our next lecture, that is lecture number 31 for Web Technologies and Programming course. In today's lecture, we are going to see the summary of first 15 lecture that we have discussed till now. What is we are going to cover in today's lecture? We first of all going to review an introduction to web technologies. Then we are going to discuss the web application development process. Moving onward, we will discuss web project management, then requirement engineering, modeling web applications, implementing and testing web applications, and web application architecture. Then we will see the introduction to the HTML links and navigation detail, adding image, audio and video files to web pages, how to create tables in HTML, how to create forms in HTML, and HTML form elements. Then we will review for introduction to cascading style sheets, how to page layout and CSS properties, and finally we will review about CSS3. Introduction to web technologies. What is web? Web is basically an extension in the software engineering. Web is basically defined by an organization, that is WWW, World Wide Web, that defines the standard for the web-based applications or website. Then we are going to see the different types of web applications. For that, we need to know how web applications work, what are their flow. And we have discussed about the case of web engineering. For that, we have seen software engineering is basically a technique in which we see what are different activities that are involved in order to develop a software. So वेब इंजीनियरिंग बेसिकली एक्सटेंशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, एंड जिसके अंदर हम वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को क्रिएट करना सीखते हैं. उसके बाद हमने डिफरेंट वेब एप्लीकेशंस के बारे में देखा. अगर हमारे वेब पेजेस स्टैटिक हैं और इंफॉर्मेशन चेंज नहीं हो रही और लिमिटेड नंबर ऑफ वेब पेजेस हैं, तो वी आर कॉलिंग दैट पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन एज डॉक्यूमेंट सेंट्रिक वेब. देन हमारे पास इंटरैक्टिव एंड ट्रांजैक्शनल वेब एप्लीकेशंस हैं. बैंकिंग के अंदर जो हमारी एप्लीकेशंस यूज़ हो रही हैं ट्रांजैक्शनल वेब एप्लीकेशंस, और जब यूज़र्स हम ज़्यादा कोलैबोरेट करवा रहे होते हैं सो वो इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशंस हैं. देन हमारे वर्क फ्लो बेस्ड वेब एप्लीकेशंस हैं. कॉर्पोरेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट से एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट ट्रेवल करती है. फॉर एग्जांपल एक रिक्वेस्ट की गई अबाउट पर्टिकुलर इन्वेंट्री की, वो इन्वेंट्री की रिक्वेस्ट एक दूसरे डिपार्टमेंट में अप्रूवल के लिए चली गई. देन उसके रेलिवेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में उसकी फाइनेंस को जनरेट किया गया. सो एक वर्क फ्लो बेस्ड एप्लीकेशन है. फिर उसके बाद हमारी सोशल वेब एप्लीकेशन है, सोशल कोलैबोरेशन के लिए, लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड सो ऑन. एंड देन वी हैव पोर्टल ओरिएंटेड वेब एप्लीकेशंस. डिफरेंट वेब पोर्टल्स हैं हमारे पास. एजुकेशन के अंदर पोर्टल्स यूज हो रहे हैं, LMS यूज हो रहे हैं, that are portal oriented web applications. And moving onward, we have discussed about ubiquitous web applications. The thing that is present everywhere is called as ubiquitous computing. So web everywhere हमारे पास present है, ऐसी web जो globally accessible है हमारे पास, और उसके अंदर हमारे पास हर यूजर की नीड्स हैं, that is ubiquitous web application. Then हमने देखा कि वेब की कैटेगरी के अंदर हमने कुछ कैटेगरीज करेक्टरिस्टिक्स को देखा जो 3 डिफरेंट डायमेंशंस में है: प्रोडक्ट, यूजेज एंड डेवलपमेंट. सो वेब एप्लीकेशन प्रोडक्ट बेस्ड है और वेबसाइट है,
एक कॉन्टेक्स्ट, उसके यूज़र कितने हैं, नंबर ऑफ यूज़र्स लेस देन 100 हैं, मोर देन 100 हैं, लॉन्ग टर्म उन एप्लीकेशंस को उन्होंने यूज़ करना है या फॉर द शॉर्ट टाइम उस वेब बेस्ड एप्लीकेशन को यूज़ किया जाएगा, और उसका डेवलपमेंट टाइम अकॉर्डिंगली कितना है, इट इज़ इन वीक्स और इट इज़ इन मंथ्स। सो कंसिडरिंग दैट हम वेब एप्लीकेशंस को भी कैरेक्टरिस्टिक्स असाइन करते हैं। एंड देन वी हैव सीन the web application integrations as well. For that we have discussed that there are 3 integration issues. The first one is the legacy system. Legacy systems हमारे पास वो systems है जो हमारे पास already पुरानी टेक्नोलॉजी में developed हैं, और ऐसी particular systems को हम integrate करना चाह रहे हैं अपने नए system के साथ। उसके बाद हमारे पास external integration के issues हैं। जब हम वेब सर्विसेज को कॉल करते हैं, इंटीग्रेट करना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें प्रॉब्लम फेस होता है। एंड फाइनली हमारे पास करेक्ट इंटरेक्शन के प्रॉब्लम्स होते हैं विद डिफरेंट सिस्टम्स एंड यूजर्स। मूविंग ऑनवर्ड हमने देखा था डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल को। फॉर दैट वी हैव सीन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस एक्टिविटीज। सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज बेसिकली गिविंग द सेट ऑफ एक्टिविटीज in a proper systematic manner, adopting that we are going to design and develop a product, a software, a program. So similarly, जिस तरह हमने सॉफ्टवेयर डेवलप की कुछ एक्टिविटीज देखी, इसी तरह एक वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए हमारी कुछ एक्टिविटीज हैं। The first activity is requirement. So we need to know about the requirements. And the most suitable method, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मेथड जो रिक्वायरमेंट के लिए बहुत सुटेबल है फॉर वेब बेस्ड एप्लीकेशन इज RUP, that is Rational Unified Process Model, and it is basically a modern process model which is derived from the work on the UML and associated process. Lightweight processes के कंसर्न में हमारे पास different other processes भी मौजूद हैं, but they are not suitable for web-based application. While RUP is a heavyweight process, phase-oriented है, incremental and iterative approach दे रहा है, और हम rich set of features create कर सकते हैं. That's why it is suitable for web-based application. Then हमने देखा कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, web-based application के अंदर जब requirements को लेने चाह रहे होते हैं, तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी जो फंक्शनैलिटी है दैट इज़ अ वेरी क्रिटिकल पार्ट। सो कौन से फीचर्स हमने अपनी वेब बेस्ड एप्लीकेशन में ऐड करने हैं, कौन से फीचर हमने एक्सक्लूड करने हैं, क्या हमारे सिस्टम की कंस्ट्रेंट्स होंगी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस। फॉर दैट वी नीड टू परफॉर्म अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। उसमें सबसे पहले हमारी एक फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है। किसी भी सिस्टम को डिज़ाइन और डेवलप करने से पहले एक प्राइमरी लेवल पे फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है, जिसके बाद ये इंश्योर किया जाता है कि हमारी वो पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन हमारे अवेलेबल टाइम के मुताबिक, अवेलेबल कॉस्ट के मुताबिक, और जितने हमारे पास टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, ह्यूमन बीइंग्स, हमारे पास जो आईटी टीम है उसकी जो स्किल्स हैं, उसके मुताबिक क्या वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्लाइंट की नीड को मीट करते हुए पॉसिबल है या नहीं है। इफ इट इज पॉसिबल देन वी विल कैरी ऑन। सो सबसे पहले उसके लिए हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं। हम एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो हमारे कंपटीटर्स हैं उनको स्टडी करते हैं, उनमें देखते हैं कि कौन सी अच्छी बेस्ट फीचर्स मौजूद हैं। हमारे जितने स्टेक होल्डर्स मौजूद होते हैं उनसे हम क्वेश्चनर के ज़रिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के ज़रिए, इंटरव्यू के ज़रिए हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं, और हम अपने यूज़र से, अपने क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स लेते हैं। सो इन रिक्वायरमेंट्स को हम लिस्ट डाउन करते हैं, एंड देन इन रिक्वायरमेंट्स को डिपेंडिंग अपॉन कॉस्ट फैक्टर, डिपेंडिंग अपॉन टाइम फैक्टर, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी, डिपेंडिंग अपॉन द टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेशन हम एनालाइज करते हैं, और कुछ रिक्वायरमेंट्स को हम इसमें
मॉडिफाई कर देते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स को हम इसमें ऐड कर देते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स को हम डिलीट कर देते हैं। सो जो हमारे पास रिमेनिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं दैट आर बेसिकली द फाइनलाइज्ड रिक्वायरमेंट, द एग्रीड अपॉन रिक्वायरमेंट। ये जो हमारे पास एग्रीड अपॉन रिक्वायरमेंट्स होती हैं इनको हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहते हैं, और ये एग्रीड अपॉन रिक्वायरमेंट्स हम एक डॉक्यूमेंट के अंदर दैट इज SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट और PRS प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहते हैं। इस डॉक्यूमेंट का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है और रिक्वायरमेंट्स को उसके अगेंस्ट लिखा जाता है। यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट भी करते हैं, हम चेक करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स इम्प्लीमेंटेबल हैं, टेंजिबल रिक्वायरमेंट्स हो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो टेस्टेबल हों, हम रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली ट्रैक कर सकें, रिक्वायरमेंट्स को मैनेज कर सकें। सो इन दिस वे वी फाइनलाइज द requirement engineering process. Then we have discussed about project management. Project management is basically a process for planning, organizing, motivating and controlling different resources, human resources, hardware resources, software resources and procedure to develop a software project or a web project. So projects को control करने के लिए और टाइमली फैशन के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट को रिलीज करने के लिए हमें इंश्योर करना होगा कि वो हमारे पास रिक्वायर्ड टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर डेवलप हो और जितना अवेलेबल बजट है उस बजट के अंदर वो प्रोडक्ट हमारी बन सके। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो उसकी कुछ टास्क हैं, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो इंश्योर करे कि टाइम टू टाइम सारे टास्क हो रहे हैं, वो ट्रैक डाउन करे कि कौन से फीचर्स नहीं बन पा रहे, क्या रीजंस है वो नहीं बन पा रहे, उन एरर्स को, उन इश्यूज को रिमूव करे। इसके साथ साथ वो डिफरेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो टीम को चाहिए उनको इंश्योर करे, बजट को टाइम टू टाइम जो बजट चाहिए वो बजट एलोकेट करे, क्लाइंट से कोलैबोरेट करके स्ट्रीमलाइन करे करंट डेवलपमेंट को, क्लाइंट को जितना अवेलेबल सॉफ्टवेयर है उसके रेलिवेंट रिलीजेस क्लाइंट को दे। सो दीज आर डिफरेंट जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तौर पे करनी है प्रोजेक्ट मैनेजर ने। देन हमने देखा एक ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट को डेवलप करने में और एक वेब प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट करने में क्या डिफरेंस। एक वेब बेस्ड प्रोजेक्ट को डेवलप करते हुए हम लोग ग्लोबल ऑडियंस को देख रहे होते हैं। ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट के अंदर ग्लोबल ऑडियंस नहीं होगी। वेब बेस्ड प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग उसकी वेब होस्टिंग को, वेब टेक्नोलॉजीज को भी कंसिडर करेंगे। इसके साथ साथ वेब बेस्ड प्रोजेक्ट के अंदर डाइवर्स यूजर के होने की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है, हमें इस फीचर को भी कैटर करना है। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के क्या क्या टास्क हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए वी नीड अ प्रॉपर प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, प्रॉपर ग्रैंड चार्ट्स डेवलप किए जाते हैं जिनके अंदर डिफाइन किया जाता है कि क्या क्या माइलस्टोन हैं, क्या डिफाइंस उनकी डेडलाइंस हैं और किस किस ह्यूमन रिसोर्स को कौन कौन सा काम असाइन किया गया। सो एक प्रॉपर ब्रेकडाउन्स, प्रॉपर प्लान किया जाता है। उसके साथ साथ हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट होती है। डिफरेंट तरह के रिस्क एसोसिएटेड होते हैं हर प्रोजेक्ट के साथ। कुछ एक्सपेक्टेड रिस्क होते हैं, कुछ अनफोर्सीन रिस्क होते हैं। सो रिस्क मेडिटेशन की जाती है, उसमें एनालाइज किया जाता है कि रिस्क को कंसिडर करते हुए हमने उसकी टाइमलाइंस को, उसके बजट को मैनेज करना होता है। सो डिफरेंट तरह के रिस्क को हमने स्टडी किया था। देन पीपल मैनेजमेंट, दिस इज द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर। पीपल मैनेजमेंट में डिफरेंट आईटी टीम में डिफरेंट लोग होते हैं। फॉर एग्जांपल डिजाइनर्स हैं, डेवलपर हैं, टेस्टर हैं, मार्केटिंग पर्सनल्स हैं, टेक्निकल राइटर्स हैं। सो एक सॉफ्टवेयर को, एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन को डिफरेंट लोग मिलकर बना रहे होते हैं। सो एक बंदे का काम दूसरे बंदे के लिए इफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एक डेवलपर जो है वो एक रेलिवेंट रिलीज टाइम पे टेस्टर को देगा तो वो उसके ऊपर टेस्टिंग परफॉर्म कर सकता है।
सो अगर वो डेवलपर उसको नहीं कर पा रहा, डिलेज आ रहे हैं, इफेक्ट हो रहा है, सो प्रोजेक्ट मैनेजर ने उसको स्ट्रीमलाइन करना है। सो सारे टीम को इक्वल टास्क डिस्ट्रीब्यूट हो, वर्कलोड जो है वो बैलेंस हो और पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज ना हो रहे हो और टाइमली फैशन के ऊपर क्वालिटी के साथ हर बंदा अपना काम कर रहा हो, इंटरेस्ट डेवलप्ड हो रहा हो लोगों का काम करते हुए। सो दीज आर द थिंग्स दैट इज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पीपल मैनेजमेंट। देन प्रोजेक्ट मैनेजर ने रिपोर्टिंग करनी होती है डिफरेंट। रिपोर्टिंग के अंदर वो वीकली मंथली रिपोर्ट्स जनरेट करके सेंड कर रहा होता है पर मैनेजमेंट को, जिसके अंदर वो मेंशन कर रहा होता है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के अंदर कितने टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, फॉर एग्जांपल कितने टास्क रहते हैं, किस बंदे ने कितने टास्क किए, बजट का क्या स्टेटस है, इस प्रोजेक्ट के अंदर कितने एरर्स आ रहे हैं, बग्स कितने आ रहे हैं, चेंजेस की क्या स्टेटस है, वर्जनिंग कितनी मेंशन हो रही है। सो कंप्लीट डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स हैं जो जनरेट करके प्रोजेक्ट के स्टेटस को एनालाइज किया जा सकता है किसी भी टाइम पे। एंड इन द एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट प्रपोजल राइटिंग इज द जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर, इन विच प्रोजेक्ट के अंदर जो नए फीचर्स अकोमोडेट हो रहे हैं और नए प्रोजेक्ट के प्रपोजल्स को लिखा जाता है विन करने के लिए। Then we have discussed about requirement engineering. For that we have discussed principles क्या है हमारे पास requirement engineering के, rules होते हैं हमारे पास requirements लेने की। कुछ एक requirement हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज में फाइनली आनी चाहिए जो एक डेवलपर अंडरस्टैंड कर सके। टूल्स हैं जिनके जरिए हम रिक्वायरमेंट्स की वर्जनिंग को मैनेज कर रहे होंगे। ड्राइंग टूल्स हैं जिसके अंदर हम रिक्वायरमेंट्स को मॉडल करके ड्रॉ करके बता रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं एक एक रिक्वायरमेंट को इन डिटेल इन प्रॉपर फ्लो, वैलिडेट कर रहे होते हैं रिक्वायरमेंट को, चेक कर रहे होते हैं कि ये टेस्टेबल है और प्रोजेक्ट के गोल्स के साथ जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं अलाइंड हो, मैप कर रही हो। सो दीज ऑल आर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। एक रिक्वायरमेंट्स हमेशा एक जर्नल लेवल स्टेटमेंट होती है जहां से स्टार्ट करके हम उसको एक स्पेसिफिक लेवल पे लेके जाते हैं और देन एक डिटेल मैथमेटिकल एंड फंक्शनल स्पेसिफिकेशन लेवल तक हम उसको देखते हैं। सो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की जो हमारे पास एक्टिविटीज हैं ये डिपेंड कर रहा होगा कि एप्लीकेशन की डोमेन क्या है, ये डिपेंड कर रहा होगा कैसे लोग हैं जो उसकी डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं, उसकी ऑडियंस, उसके स्टेक होल्डर, उसके क्लाइंट्स, एंड इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस क्या है किसी भी रिक्वायरमेंट्स को डेवलप करवाने के लिए। सो इन चीज़ों को देखते हुए रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस को हम इजी, मीडियम या कॉम्प्लेक्स लेवल पे हैंडल करते हैं। हमारे पास बेसिकली दो मेजर कैटेगरीज हैं रिक्वायरमेंट्स की। द फर्स्ट कैटेगरी इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड द सेकेंड कैटेगरी इज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमारे पास वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हमें क्लाइंट के बिजनेस गोल्स के बारे में बताती हैं, जो हमें यूजर की नीड के बारे में बता रही होती हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर्स डिफाइन कर रहे होते हैं। एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हमारी मोस्टली एप्लीकेशंस के अंदर सेम ही होती हैं, जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर एफिशिएंसी को क्रिएट करने के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस को क्रिएट करने के लिए मेंशन होती हैं। सो फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस, लोड, स्ट्रेस, रिलायबिलिटी, हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। हम जब भी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास कुछ कॉमन सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं जो हमें रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में परफॉर्म करनी है। व्हाट आर देम? रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन, रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया, देन एनालाइज किया, डिफरेंट फैक्टर्स को देखते हुए कॉस्ट को, टाइम को, बजट को, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज की लिमिटेशन को, उनको फिल्टर किया, देन उनको फाइनलाइज किया कि ये रिक्वायरमेंट्स है जो हमने इंप्लीमेंट करनी है। उससे पहले हमने उनको वैलिडेट किया कि वो ट्रेसेबल है, टेस्टेबल है, इम्प्लीमेंटेबल है, विद इन द बजट है, विद इन द टाइम है। एंड अगर उनमें चेंज आ रही है तो उनके अंदर हम उनकी वर्जनिंग को देख रहे होंगे और उसके साथ रिस्क को एसोसिएट कर रहे होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट
generic common activities for requirement engineering process। ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस की डायग्राम है जिसमें हमें बड़ी डिटेल में नजर आ रहा है कि सबसे पहले इसके अंदर फिजिबिलिटी स्टडी की जा रही है एंड देन उस फिजिबिलिटी स्टडी की यस या नो डिसीजन के ऊपर हम रिक्वायरमेंट्स को एलिस्टेट एंड एनालाइज कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट्स की एलिस्टेशन एनालाइजेशन ओके है तो हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के स्टेज पे जाएंगे और फाइनली हम उनको वैलिडेट कर रहे होंगे। सो एलिस्टेशन जो है वो हमें सिस्टम मॉडल बना रही होगी, स्पेसिफिकेशन हमें यूजर एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के बारे में बता रही होंगी और फाइनलाइज जो रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट है वो वैलिडेशन के साथ लिंक्ड होगा। आफ्टर द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस वी हैव सीन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ अ सिस्टम, जेनेरिक मॉडल ऑफ द सिस्टम हम देख रहे होते हैं। सो जेनेरिक मॉडल में क्या है, रिप्रेजेंटेशन है सिस्टम की यूजिंग ग्राफिकल नोटेशन। यूएमएल को हम डिटेल में रिव्यू कर रहे होते हैं। सो हमने इसको सिस्टम मॉडलिंग को डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे। द फर्स्ट एस्पेक्ट इज रिक्वायरमेंट मॉडलिंग। सो रिक्वायरमेंट को हम जब यूएमएल मॉडलिंग डायग्राम के अंदर कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो हमारे पास यूज केस डायग्राम एंड एक्टिविटी डायग्राम हमारे पास आती है। यूज केस डायग्राम is basically for representing a specific unit level task, unit level feature। उसमें हमारे पास जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उसको हम एक्टर कहते हैं और जो एक्शन उसने परफॉर्म करना है उसको हम एक्शन कह रहे होते हैं। सो एक्टर को एक्शन के साथ हम रिलेट करके यूज केस डायग्राम प्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसमें अगर कॉमन बिहेवियर हमारे पास आ रहा है तो हम इंक्लूड कर रहे हैं और फंक्शनैलिटी एक्सटेंड हो रही है तो हम एक्सटेंड से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो प्रॉपर हमने उसके अंदर उसकी नोटेशंस को और यूज केस डायग्राम्स को बनाते हुए देखा। देन हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम थी। फॉर डैट हम किसी पर्टिकुलर फ्लो को देखना चाह रहे हैं किसी भी एक्शन का तो हम एक्टिविटी डायग्राम को देख रहे होते हैं। इन एक्टिविटी में हम देख रहे होते हैं कि कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे किसी एक्शन को, कब कब हमारे डिसीजंस होंगे एंड फाइनली हमारे उस पर्टिकुलर टास्क का स्टॉप कहाँ पे होगा। द सेकेंड वे फॉर checking the modeling is with respect to the content. For that we have seen class diagram. Object oriented programming methodology हम फॉलो करते हैं तो तब हम लोग क्लास डायग्राम बना रहे होते हैं। क्लास डायग्राम में बस डिफरेंट किस्म की क्लासेस होती हैं एंड क्लास डायग्राम के अंदर हमारी जो क्लासेस होंगी डिफरेंट तरह की उनके एट्रीब्यूट्स होंगे, उनके मेथड्स होंगे। एक क्लास किसी दूसरी क्लास से किस तरह रिलेटेड है, एक क्लास का दूसरी क्लास से क्या पर्टिकुलर एसोसिएशन है, एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है, एक क्लास दूसरी क्लास के साथ डायरेक्टली रिलेट कर रही है। तो ये डिफरेंट तरह की हमने रिलेशन एंड एसोसिएशन एंड जनरलाइजेशन एंड स्पेसिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को क्लास डायग्राम में डिस्कस किया। मूविंग आउटवर्ड हमने नेविगेशनल मॉडलिंग को देखा। नेविगेशनल मॉडलिंग के अंदर हमने देखा कि वेबसाइट के अंदर जो हमारे डिफरेंट तरह के वेब पेजेस हैं उनके अंदर हमने फ्लो को देखा कि कैसे हम फ्लो को स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं, मॉडल कर रहे होते हैं। एंड देन प्रेजेंटेशन मॉडलिंग को हमने डिस्कस किया। प्रेजेंटेशन मॉडलिंग के अंदर हम लोगों ने देखा कि यूजर जिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जिससे कांटेक्ट कर रहा होगा, जो यूजर के व्यू से ज्यादा क्लोज होगी, दैट इज प्रेजेंटेशन मॉडलिंग। सो हम किस तरह पेज को लेआउट कर रहे हैं, उसके डिजाइन को कैसे फॉलो कर रहे हैं, ये चीजें जो हमने प्रेजेंटेशन मॉडलिंग के अंदर देखी थी। सो प्रेजेंटेशन मॉडलिंग के अंदर हमारे पास एक डायग्राम थी। हियर वी कैन हैव अ क्लियर व्यू से सबसे अंदर जो हमारे पास प्रेजेंटेशन मॉडलिंग में कंपोनेंट है दैट इज प्रेजेंटेशन यूनिट। उसके अंदर हमारे पास वेब फॉर्म के एलिमेंट्स हैं एंड यहाँ पे हमारे पास वेब पेज लेवल के एलिमेंट्स हैं और ओवरऑल एक यूजर का पेज है। सो इसमें हमने लेआउट्स को देखा था जो हम यूजर को प्रेजेंट करेंगे। डिजाइन लेवल के बाद जो हमारे नेक्स्ट वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए एक्टिविटी है दैट इज इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग। सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड अबाउट द वर्ड ऑफ एप्लीकेशन कि हम कैसे बनाएंगे, अब हम उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। सो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स डिफाइन हो चुकी हैं, आर्किटेक्चर हमने डिफाइन कर लिया है, हमारा मॉडल एंड डिजाइन रेडी हो चुका है। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द
इम्प्लीमेंटेशन फेज। सो हम प्रॉपर कोडिंग टेक्निक्स को, डिज़ाइन गाइडलाइंस को, प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अपनी एप्लीकेशन की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देंगे। एंड इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम टेस्टिंग की एक्टिविटी पे आ जाएंगे। एंड व्हाई वी आर गोइंग टू परफॉर्म द टेस्टिंग एक्टिविटी? इन ऑर्डर टू कंडक्ट टू एवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर अच्छी क्वालिटी लाना चाह रहे हैं, उसको यूजर के लिए यूजर फ्रेंडली बनाना चाह रहे हैं। सो ये कैसे मुमकिन होगा? जब उसके अंदर हम इश्यूज को, बग्स को, डिफेक्ट्स को डायग्नोज करेंगे। सो इश्यूज एंड बग्स को डायग्नोज करने का जो प्रोसेस है, दैट इज सेड टू बी टेस्टिंग। सो इफ वी रन अ पर्टिकुलर प्रोग्राम with the intent to find errors, then we are basically talking about testing activity. So by testing we are determining the quality state of the system. क्वालिटी की स्टेट क्या है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या है, प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी क्या है, प्रोडक्ट में कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है। फॉर डैट हमने डिफरेंट किस्म की टेस्टिंग की टेक्निक्स को डिस्कस किया। उसके लिए हमने देखा कि हमारे पास यूनिट लेवल की टेस्टिंग मौजूद है, हमारे पास इंटीग्रेशन लेवल की टेस्टिंग मौजूद है, हमारे पास सिस्टम लेवल की टेस्टिंग मौजूद है। सो जब हम एक स्पेसिफिक फीचर को, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को टेस्ट कर रहे होते हैं, जो डेवलपर की जॉब डिस्क्रिप्शन है, दैट इज सेड टू बी यूनिट लेवल टेस्टिंग। जब हम डिफरेंट यूनिट लेवल टेस्टिंग को मॉड्यूलर लेवल के ऊपर देखते हैं और मॉड्यूल्स को, कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करके चेक कर रहे होते हैं, तो हमारे पास इंटीग्रेशन लेवल की टेस्टिंग होती है। और जब हम कंप्लीट सिस्टम को फ्लो करके देख रहे होते हैं और सिस्टम लेवल के ऊपर कोई इश्यूज एंड बग्स ना आ रहे हो एग्जीक्यूट करने पे, तो हमारे पास सिस्टम लेवल टेस्टिंग होती है। फिर हमने देखा कि हमारे पास कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल रूल्स मौजूद हैं डिफरेंट तरह की वेब बेस्ड एप्लीकेशन की टेक्नोलॉजीज के लिए। उसमें हमारे पास कुछ क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज हैं, कुछ हमारे पास सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमने देखा कि क्लाइंट साइड पे हम HTML को, CSS को, जावास्क्रिप्ट को देख रहे हैं, और सर्वर साइड पे फॉर एग्जांपल हमारे पास PHP है, हमारे पास ASP.NET है। सो कुछ चीज़ें हम क्लाइंट साइड पे देख रहे हैं, कुछ चीज़ें हम सर्वर साइड के ऊपर देख रहे हैं। और इसके ऊपर हमने देखा कि हमारा जो टेस्टिंग का गोल है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। उसके अलावा हमने देखा कि हम एक टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, दैट इज सेड टू बी UAT, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सो हम यूजर को रिलीज करने से पहले एक वर्जन देते हैं कि उसके अंदर वो उसको चेक कर ले, जो इश्यूज हैं वो बता दे। एंड समटाइम्स हम मार्केट में एक वर्जन लॉन्च करते हैं, बीटा वर्जन, सो दैट उसके अंदर हम अपने कस्टमर से, यूजर से रिव्यू ले रहे होते हैं फॉर द टेस्टिंग पर्पस। वेब एप्लीकेशन को जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं तो हमारे टेस्टिंग के एस्पेक्ट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज हमें इसको नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स में डाइवर्स यूजर्स के लिए, मोर नंबर ऑफ यूजर के लिए, ज़्यादा डाटा साइज के साथ टेस्ट करना होता है। तो हमारे पास चैलेंजेस हैं जब हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं कि हमारे यूज़र इंक्रीज कर रहे हैं, हमारे पास डाटा साइज इंक्रीज कर रहा है, हमारे पास डिफरेंट ब्राउजर्स हैं, उनके ऊपर चेक करना है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे यूज़र उन ब्राउजर्स को यूज़ कर रहे हैं, एंड डिफरेंट डिवाइसेस, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, उनके मुताबिक हमारे पास एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होना है। सो वी नीड टू settle these sort of challenges while testing web-based application. Moving onward, we have discussed about the software system architecture. Architecture of any system is basically the high-level, most general design on which the system is based. So abstract layout है आपके सिस्टम की, कि आपके सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स कैसे अरेंज हुए हुए हैं। आर्किटेक्चर के अंदर तीन चीज़ें इंक्लूडेड हैं, कंपोनेंट, कनेक्टर एंड कोलैबोरेशन। कंपोनेंट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम एंड इट कंटेन्स वन और सेवरल रूटीन्स। कनेक्टर आर बेसिकली कंसर्न हाउ द कंपोनेंट्स आर गोइंग टू बी कम्युनिकेटेड एंड collaborations are concerned how the components are going to interact. So component, connector and collaborator का concept हमें combinedly किसी system के architecture के बारे में बता रहा होता है। These are the major components for web-based application. सबसे पहले आप देखिए हमारे पास यहाँ पे client browser के जरिए किसी भी वेब पेज के अंदर वेब रिसोर्स को
एक्सेस करता है। सो ब्राउज़र के अंदर हम डिफरेंट थर्ड पार्टी प्लगइन्स का इंस्टॉल कर सकते हैं डिफरेंट टूल्स के तौर पे, और ब्राउज़र की रिक्वेस्ट फायरवॉल जो उसके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है उससे पास होकर प्रॉक्सी पे आती है। प्रॉक्सी बेसिकली आपके पास एक कैश है, जब भी रिक्वेस्ट आती है तो सबसे पहले प्रॉक्सी में दिखा जाता है कि प्रॉक्सी में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। अगर प्रॉक्सी में एग्जिस्ट कर रही है तो गुड, अगर नहीं कर रही तो रिक्वेस्ट सर्वर पे सेंड कर दी जाती है। सर्वर से रिक्वेस्ट कैसे आती है ये हम देखते हैं, लेकिन जब सर्वर से आप रिक्वेस्ट लाते हैं तो हम क्लाइंट को रिस्पॉन्स देने से पहले उसका हेडर इंफॉर्मेशन प्रॉक्सी में मेंशन कर देते हैं, सो डैट यूजर प्रॉक्सी से नेक्स्ट टाइम जब वो रिक्वेस्ट करे तो प्रॉक्सी से उस इंफॉर्मेशन को सर्व किया जाए। सो यूजर ने रिक्वेस्ट की, प्रॉक्सी पे आई, प्रॉक्सी में मौजूद है तो सर्व होगी। क्यों प्रॉक्सी से सर्व हुई? बैंडविड्थ को मिनिमाइज करने के लिए, टाइम को एफिशिएंट रिस्पॉन्स बनाने के लिए। सो नेक्स्ट हमारे पास अगर प्रॉक्सी में रिक्वेस्ट एग्जिस्ट नहीं करती तो वो रिक्वेस्ट वेब सर्वर पे चली जाएगी। वेब सर्वर के अंदर अलग से डिफरेंट सर्वर्स हैं, डेटाबेस सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर है जो आपस में लिंक्ड है, और एप्लीकेशन सर्वर किसी ऑलरेडी ओल्ड टेक्नोलॉजी लेगेसी सिस्टम के साथ भी इंटीग्रेटेड हो सकता है, और मीडिया सर्वर है डिफरेंट क्यूरीज के लिए। सो वेब सर्वर अपने रेलिवेंट क्यूरी जनरेट करेगा और जो भी रेलिवेंट सर्वर्स अटैच्ड है वहां से वो रिक्वेस्ट को फेच करेगा, प्रॉक्सी को हेडर मेंशन करेगा, एंड देन क्लाइंट के ब्राउजर पे रिक्वेस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। डिफरेंट तरह के आर्किटेक्चर्स हमारे पास हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन और डेवलप करने के लिए। वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए हमारे पास जो आर्किटेक्चर है वो 3 कॉमन आर्किटेक्चर्स हैं, तीनों लेयर्ड वेब आर्किटेक्चर के अंदर इंक्लूडेड है। द फर्स्ट वन इज 2 लेयर्ड आर्किटेक्चर, द सेकेंड वन इज 3 लेयर्ड आर्किटेक्चर, एंड द थर्ड वन इज n लेयर्ड आर्किटेक्चर। 2 लेयर्ड आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास डिफरेंट क्लाइंट्स हैं और एक सेंट्रल सर्वर है। सो क्लाइंट उस सेंट्रल सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्लाइंट्स को दे दिया जाता है। 3 लेयर आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है, बिजनेस लॉजिक लेयर है, एंड डेटाबेस लेयर है। सो क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट करता है एप्लीकेशन लेयर के जरिए कर रहा होता है। एप्लीकेशन लेयर पे कुछ बिजनेस गोल्स की वैलिडेशंस होती है, बिजनेस गोल्स का डाटा चेक किया जाता है और उसके अगेंस्ट वो रिक्वेस्ट सेंड की जाती है सर्वर पे। एंड सर्वर पे हमारे पास डेटाबेस लेयर मौजूद होती है और डेटाबेस के अगेंस्ट डाटा को मैच करके रिस्पॉन्स बेस दिया जाता है। 2 लेयर आर्किटेक्चर हमारे पास स्मॉल नंबर ऑफ एप्लीकेशन के लिए 10 to 50 पीपल के लिए अगर एक एप्लीकेशन बनानी है तो 2 लेयर इज फाइन। जब हमने 3 लेयर आर्किटेक्चर बनाना है सो हमारे 100 to 1000 यूजर्स के लिए 3 लेयर आर्किटेक्चर सुटेबल है और मोर देन 1000 के लिए n लेयर आर्किटेक्चर। n लेयर आर्किटेक्चर में हमारे पास डिफरेंट क्लाइंट्स डिफरेंट रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे होंगे और वो रिक्वेस्ट डिफरेंट सर्वर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड उनको एक सर्वर या नेटवर्क लोड बैलेंसर के जरिए मैनेज किया जाएगा। Then we have discussed in detail about HTML. What is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language and it is a language of web pages on the World Wide Web. And hypertext allows you for non-linear linking to other document. While the markup language is basically the content that is markup or tagged to tell the browser how to display it. So HTML is basically using the tags presenting the information to the user. ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है HTML पेज का। Here you can see HTML का ये स्टार्ट टैग मेंशन है और ये हमारे पास HTML का एंड टैग मेंशन है। यहाँ पे हमारे पास HTML के हेड की इंफॉर्मेशन आ रही है। हेड टैग के अंदर हमने टाइटल टैग को मेंशन किया। हमेशा हमारे पास एक स्टार्ट टैग होगा और एंड टैग होगा। एंड टैग हमारे पास स्लैश के साथ है। देन यू कैन सी हमारे पास हेड के बाद बॉडी टैग मेंशन है और बॉडी टैग हमारा जो HTML के अंदर मेंशन है इसका भी एक स्टार्ट टैग है और इसका एक स्पेसिफिक एंड टैग मेंशन है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि बॉडी टैग के अंदर जो इंफॉर्मेशन आएगी वो यूजर को उसके ब्राउजर पे नजर आएगी।
but whatever the information that we are presenting in the head tag will not be displayed on the user browser. बॉडी टैग के अंदर हमारे पास हेडिंग का टैग है, डिफरेंट तरह की हेडिंग्स मौजूद है हमारे पास, H1 से H6, H1 इज द लार्जेस्ट हेडिंग, H6 इज द स्मॉलेस्ट वन. देन पैराग्राफ का टैग मौजूद है. सो ये हमने बॉडी के अंदर मेंशन किया. So this is the basic structure of an HTML page. Then we have seen the basic structure of HTML page, and we have seen the body tag attributes, text formatting tags and list. For body tag we have seen the paragraph tag, the bold tag, the italic tag for the text, and then text can be superscript, subscript, then background color can be changed, then background image can be placed, and then we have seen the particular special characters like for writing copyright information, trademark information, and we have also discussed about list. List are basically ordered list and unordered list. हमने देखा था कि information को हम इंडेक्स करके प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास ऑर्डर लिस्ट थी, अनऑर्डर्ड लिस्ट थी. Now we are going to see about HTML links and navigation. बेसिकली एक HTML पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करने के लिए हम लिंकिंग कर रहे होते हैं. सो लिंक करने के लिए हमारे पास जो टैग मौजूद है दैट इज एंकर का टैग मौजूद है. इट स्टार्ट्स विद ए एंड एंड विद /a, एंड दिस बिकम्स द पार्ट ऑफ द लिंक दैट यूजर कैन क्लिक ऑन द ब्राउजर. हमारे पास डिफरेंट तरह की अप्रोचेस हैं लिंक करने के लिए. हमारे पास इंटरनल लिंक्स हैं, हमारे पास एक्सटर्नल लिंक्स हैं. इंटरनल लिंक वो लिंक हैं जो हमारे डायरेक्टरी के अंदर ही किसी और पेज को लिंक कर रहे होंगे. सो लोकल लिंक जो है हमारा एक पेज का नाम, हम उस पर खाली मेंशन करेंगे. लोकल लिंक हमारा इंटरनल लिंक है और वह एज अ टारगेट ऐड करेगा उसी सर्वर की डायरेक्टरी के अंदर जो हमारा पेज पड़ा हुआ है, दैट इज द लोकल लिंक. सो हम लोग लिंक कैसे कर रहे होते हैं, उसके लिए हमारे पास एक और जो अप्रोच है वह है एक्सटर्नल लिंक. अगर हम किसी और की वेबसाइट को, किसी थर्ड वेबसाइट को अपनी वेबसाइट के अंदर उसके पेज को लिंक करना चाह रहे हैं तो दैट इज एक्सटर्नल लिंक. सो कभी भी हमें वेब पेज में लिंक करना पड़े, चाहे वो इंटरनल लिंक हो चाहे वो एक्सटर्नल लिंक हो, तो हम href के एट्रीब्यूट को यूज करते हैं. href के अंदर अगर वो लोकल है तो हम सिर्फ पेज का नाम और एक्सटेंशन मेंशन करते हैं. अगर इंटरनल है तो हम उसकी डायरेक्टरी का पाथ और पेज का नाम विद एक्सटेंशन मेंशन करते हैं. और अगर वो एक एक्सटर्नल लिंक है तो हम उसका एक कंप्लीट एब्सोल्यूट पाथ मेंशन करते हैं. सो हियर यू कैन सी द मेथड दैट इज रिटन href इक्वल्स टू, आगे हमारे पास एब्सोल्यूट पाथ मौजूद है और ये हमारे पास एक्सटर्नल लिंक मौजूद है. एंड हियर द लेबल दैट विल अपीयर. सो हमारे पास पेज पे क्लिक हियर आएगा, क्लिक हियर को क्लिक करने के ऊपर हम लोग इस पर्टिकुलर लिंक के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे. सो दिस इज द वे हाउ वी आर लिंकिंग. इसके बाद हमने HTML के अंदर इमेज को ऐड करना देखा. इमेज को भी हम एंकर के टैग के अंदर ही ऐड कर रहे होते हैं. सो वी हैव सीन कि हमारे पास इंटरनल इमेज हो सकता है या एक्सटर्नल इमेज हो सकता है. अगेन जस्ट लाइक आवर लिंक, अगर आपके पास इंटरनल इमेज है तो आपसे फाइल का नाम विद फाइल की टाइप बताएंगे, और अगर एक्सटर्नल है तो आप उसको कंप्लीट पाथ मेंशन करेंगे. इमेज में हम लोग इमेज की जो टाइप्स हैं उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. कॉमनली यूज जो हमारे पास इमेज की टाइप्स हैं वो .jpeg, .bmp, .png फाइल है हमारे पास. सो इमेज के टैग को यूज करने के लिए हमारे पास चाहिए दैट इज इमेज सोर्स. हम मेंशन करते हैं किस पर्टिकुलर फिजिकल पाथ के ऊपर वो इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर जगह से इमेज को उठाने के लिए हम इमेज सोर्स की एट्रीब्यूट को यूज करते हैं. और उसके साथ साथ हम इमेज की हाइट, इमेज की विड्थ भी मेंशन कर सकते हैं. सो द जनरल सिंटैक्स फॉर एक्सेसिंग द इमेज इन योर वेब पेज इज इमेज सोर्स. इसके अंदर आप URL में मेंशन करेंगे. अगर आपका लोकल इमेज है तो सिंपली फाइल का नाम सपोज flash.jpeg मेंशन कर देंगे. इंटरनल डायरेक्टरी में से है तो डायरेक्टरी का नाम / फाइल का नाम विद एक्सटेंशन मेंशन करेंगे. एंड सिमिलरली अगर एक्सटर्नल है तो एब्सोल्यूट पाथ मेंशन कर देंगे. यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज होता है ऑल्ट का एट्रीब्यूट. समटाइम्स
स्लो इंटरनेट की वजह से, ब्राउज़र सपोर्ट ना होने की वजह से हमारे पास इमेजेस डिस्प्ले नहीं होते। इन दैट केस हमने जो टेक्स्ट ऑल्ट में मेंशन किया होगा हमारे पास वो डिस्प्ले हो जाएगा। सो ऑल्ट इज बेसिकली एन अल्टरनेट वे टू प्रेजेंट सम टेक्स्ट व्हेन इमेजेस आर नॉट डिस्प्लेड ऑन अ वेब ब्राउज़र। इसके अलावा हम इमेज की हाइट, इमेज की विड्थ को भी सेटल कर सकते हैं। हम इमेज के अलावा वीडियोस भी अपने वेब पेजेस में ऐड कर सकते हैं। वीडियोस के पेजेस को ऐड करने के लिए हम वीडियो का टैग यूज करेंगे एंड दिस टैग इज प्रोवाइडेड इन HTML5। जस्ट लाइक इमेज, वीडियो की भी स्पेसिफिक टाइप्स है लाइक mpeg3.ogg। और वीडियो के टैग को मेंशन करने के लिए हमारे पास सिंटैक्स है, दैट इज वीडियो सोर्स, मेंशन द सोर्स। अगर आपकी लोकल वीडियो है तो आप जस्ट वीडियो का नाम और वीडियो की टाइप मेंशन करेंगे। अगर आप किसी और थर्ड पार्टी साइट से वीडियो को रेफर कर रहे हैं तो आप एब्सोल्यूट पाथ मेंशन करेंगे। वीडियो की भी आप विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं और हाइट को। आप स्पेसिफिक विड्थ एंड स्पेसिफिक हाइट के लिए वीडियो को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, यू कैन कंट्रोल दैट। इसके अलावा वीडियो के डिफरेंट और भी कंट्रोल्स हैं लाइक प्ले, पॉज, फॉरवर्ड। सो उन कंट्रोल्स को भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑडियो का डेटा टाइप है। सो ऑडियो की डेटा टाइप को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। HTML5 सपोर्ट करता है ऑडियो को, और ऑडियो की टैग को मेंशन करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मेट है दैट इज ऑडियो सोर्स एंड मेंशन द सोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑडियो। अगर लोकल है तो हमने सिर्फ फाइल नेम विद एक्सटेंशन मेंशन करना है, और अगर थर्ड पार्टी से तो एब्सोल्यूट पाथ आएगा। अगेन ऑडियो की भी हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं लाइक प्ले, लाइक पॉज। सो हम ऑडियो के रिपीट, सो हम ऑडियो के भी कंट्रोल्स को मेंशन करके हैंडल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने टेबल्स को क्रिएट करना सीखा। हाउ टू क्रिएट टेबल्स इन HTML। फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज टेबल। टेबल इज बेसिकली a way to present information in form of rows and columns, and tables are commonly used to display all the manners of data that fit in a grid. So टेबल के अंदर हम लोग क्या क्या मेंशन कर सकते हैं। नॉर्मली ट्रेन के स्केड्यूल, एयरलाइन के अंदर टिकट्स की इंफॉर्मेशन आ रही होती है, न्यूज़ की साइट में आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं बुलेट्स फॉर्म में आ रही है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आ रही होती है हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज की साइट्स पे। सो इस तरह की इंफॉर्मेशन हम टेबल्स के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट कर रहे होते हैं। किसी भी टेबल को HTML में क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो टैग मौजूद है दैट इज टेबल टैग, टेबल स्टार्ट टैग, टेबल एंड देन एंड के लिए हम स्लैश के साथ टेबल लिख देते हैं। टेबल के अंदर हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट टैग्स हैं, TR, TH एंड TD। सो TR टैग जो है ये बेसिकली टेबल में रो क्रिएट करने के लिए मेंशन होता है। इसका एक स्टार्ट एंड एंड टैग मौजूद है। सिमिलरली TH टैग हमारे पास टेबल के अंदर टेबल के हेडर को क्रिएट करने का होता है। जो फर्स्ट टेबल में फर्स्ट होती है दैट इज टेबल हेडर। सो इन ऑर्डर टू क्रिएट द हेडर वी विल यूज TH टैग। इसके भी स्टार्ट एंड एंड टैग है। और एक रो के अंदर हम डिफरेंट सेल्स को जब क्रिएट करना चाह रहे हैं सो फॉर दैट हमारे पास TD का टैग मौजूद है, दैट इज फॉर टेबल डाटा। सो हमारे पास कुछ टेबल लेवल एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक हम टेबल को अलाइन कर सकते हैं, टेबल को अलाइनमेंट में लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं, टेबल को सेंटर अलाइन कर सकते हैं, टेबल के बॉर्डर को सेट कर सकते हैं, हम टेबल की बैकग्राउंड इमेज को चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ टेबल लेवल के एट्रीब्यूट हैं। देन हमारे पास कुछ रो लेवल के एट्रीब्यूट हैं। रो की हाइट को इंक्रीज कर रहे हैं, रो की विड्थ को इंक्रीज कर रहे हैं, रो के अंदर जो कंटेंट है उस कंटेंट को हम अलाइन कर रहे हैं सेंटर में, लेफ्ट में। इसके साथ हमारे पास सेल लेवल के एट्रीब्यूट्स हैं। सेल में भी हम कंटेंट को सेल लेवल से देख सकते हैं कि हम कंटेंट को अलाइन कर सकते हैं सेंटर, राइट, लेफ्ट। इसके अलावा हम सेल की हाइट एंड विड्थ को कंट्रोल कर रहे हैं। इसके अलावा हमने कॉलम स्पैन एंड सेल स्पैन को देखा। जब हम 2 कॉलम्स को मर्ज कर रहे हैं तो बेसिकली बस कॉलम स्पैन है, और 2 रोज को मर्ज करें रो स्पैन है। इसके साथ साथ हमने जो चीज डिस्कस की थी दैट इज टेबल को यूज करते हुए किसी भी वेब की पेज लेआउट को हैंडल किया जा सकता है। फॉर दैट हमने एक डिटेल एग्जांपल देखी थी कि हमने टेबल हेडर क्रिएट किया था जिसके अंदर हमने हेडर के अंदर एक मजीद डिव क्रिएट किया जब हमने लोगो मेंशन किया था एंड देन हेडर की इंफॉर्मेशन। देन हमने डिफरेंट टेबल की रोज क्रिएट की और उन रोज के अंदर हमने हाइपर लिंक्स को मेंशन किया था। फिर हमने टेबल के फुटर क्रिएट किया था, फुटर के अंदर हमने कॉपीराइट की इंफॉर्मेशन मेंशन की थी। देन टेबल के सेल के अंदर भी हम इमेज को डिस्प्ले कर सकते हैं।
सो इस तरह हमारे पास आउटपुट पे ये वाला पेज डिस्प्ले हो रहा था। इसके साथ साथ हमने HTML फॉर्म्स को डिस्कस किया था। HTML फॉर्म्स आर बेसिकली यूज्ड टू कलेक्ट यूजर इनपुट, और यूजर से हम फॉर्म एलिमेंट्स के जरिए इंफॉर्मेशन ले रहे होते। मोस्टली हमारे पास साइन अप फॉर्म्स जो हैं वो हमारे पास फॉर्म की बेस्ट एग्जांपल्स हैं। सो फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल इनपुट एलिमेंट्स हैं, चेक बॉक्सेस हैं, रेडियो बटन है, सबमिट बटन है, टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। सो डिफरेंट फॉर्म एलिमेंट्स को यूज करते हुए हम यूजर से इनपुट ले रहे होते हैं। फॉर्म को प्रेजेंट करने का तरीका क्या है? फॉर्म का टैग, स्टार्टिंग टैग, उसके अंदर फॉर्म की एलिमेंट्स आ जाते हैं, एंड देन फॉर्म का एंडिंग टैग। फॉर्म बेसिकली प्रोवाइड करते हैं अ वे ऑफ सबमिटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट टू द सर्वर, एंड HTML supports different types of tag for creating forms, and it does not process the information. Forms are just taking the information. सर्वर साइड पे हमारे पास स्क्रिप्ट मौजूद होते हैं जो फॉर्म के अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, and server side script runs on the web server and receive data from a particular form and use it for performing different tasks. कॉमन एट्रीब्यूट जो हमारे फॉर्म के साथ एसोसिएटेड हैं वो कौन कौन से? एक्शन, मेथड एंड नेम। एक्शन बेसिकली गिव्स द URL of the application that is to receive and process the form data. So एक्शन से हमें URL रिसीव हो रहा होगा। मेथड जो है बेसिकली हमारे पास that will set the HTTP method for the browser to send the form data to the server for processing. So हम मेथड को यूज करते हुए ब्राउजर को इंफॉर्मेशन देंगे ताकि वो सर्वर पे सेंड हो जाए। जो मोस्ट कॉमन मेथड्स है हमारे पास that are either पोस्ट और गेट मेथड। गेट मेथड की इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास ब्राउजर हिस्ट्री में रिटेन होती है। गेट मेथड जो है उसको हम बुकमार्क कर सकते हैं, और जब भी हम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मेंशन करना चाह रहे हैं लाइक पासवर्ड्स, लाइक क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, बैंक डिटेल्स, तो हम गेट मेथड को यूज नहीं करते। और गेट मेथड की इंफॉर्मेशन जो है वो URL में, वेब एड्रेस में अपीयर हो रही होती है। एंड गेट मेथड की एक लिमिटेशन है, इन दैट स्पेसिफिक लिमिटेशन हम गेट के अंदर डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। वाइल हमारे पास जो पोस्ट का मेथड है वो इनविजिबल करता है, हाइड कर देता है यूजर की इनपुट्स को URL में। पोस्ट का मेथड जो है वो बुकमार्क नहीं हो सकता। पोस्ट का जो मेथड है वो एक सिक्योर वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ब्राउजर की हिस्ट्री में रिटेन नहीं रहता, और पोस्ट जो है वो ज्यादा सपोर्ट करता है डेटा लेंथ को। सो हमने गेट इन पोस्ट के मेथड को देखते हुए अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर एप्लीकेशन यूज करना है। फिर हम फॉर्म को नेम कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म को हम एक स्पेसिफिक नाम दे सकते हैं। इसके साथ साथ हमने HTML5 के फॉर्म एलिमेंट्स को देखा। उसके अंदर देखा हमारे पास एक रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट है। अगर हम फॉर्म के अंदर किसी एलिमेंट में किसी वैल्यू को मैंडेटरी करना चाह रहे हैं, फॉर दैट वी विल यूज रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। अगर हम किसी फॉर्म के अंदर ये चाह रहे हैं कि कोई वैल्यू यूजर को एज अ गाइडलाइन डिस्प्ले हो, एज अ सिंपल डिस्प्ले हो, तो हम उसको प्लेस होल्डर मेंशन करेंगे। अगर इस फॉर्म के अंदर हम ये चाह रहे हैं कि यूजर जब कोई वैल्यू टाइप करे तो उसके रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन मौजूद हो वो डिस्प्ले हो जाए, तो हम ऑटो कंप्लीट के एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास पैटर्न का एट्रीब्यूट मौजूद है। अगर हम यूजर से वैल्यू किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में लेना चाह रहे हैं, फॉर दैट वी हैव द एट्रीब्यूट ऑफ पैटर्न। पैटर्न का एट्रीब्यूट एक्चुअली रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज कर रहा होता है। रेगुलर एक्सप्रेशन हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि हमने यूजर से इनपुट किस स्पेसिफिक फॉर्मेट में लेनी है। उसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास अगर लार्ज ब्रैकेट्स हैं तो वो बेसिकली रेंज को डिफाइन करने के लिए मौजूद हो रहे हैं। हमारे पास अगर किसी भी पर्टिकुलर अल्फाबेट के साथ अगर प्लस मेंशन हो रहा है, इट मीन्स एटलीस्ट वन टाइम उसकी अकरेंस हो। सिमिलरली अगर स्टैटिक हो तो उसकी एक मिनिमम अकरेंस 0 और मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है। क्वेश्चन मार्क है, सो मिनिमम 0, मैक्सिमम उसकी अकरेंस मेंशन होगी। सो इसके अंदर हमने n को देखा कि हमने मिड ब्रैकेट में n मेंशन किया है, तो मिनिमम टाइम ऑफ अकरेंस वी रिक्वायर्ड m जो है वो मैक्सिमम टाइम ऑफ अकरेंस को बताता है। सो इसके अंदर हमने रेगुलर एक्सप्रेशन के डिफरेंट रूल्स एंड प्रोसीजर्स को देखा था जो पैटर्न की मैच के लिए यूज होगा।
और ये मोस्टली सर्चिंग फैसिलिटी जो हमारे पास प्रोवाइड होती है वेबसाइट में उसके लिए होती है। उसके साथ साथ हमने डिसेबल को देखा था। अगर हम किसी फील्ड को, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को यूज़र के ब्राउज़र पर डिस्प्ले करना चाह रहे हैं बट वी वांट कि यूज़र उसको जस्ट व्यू कर सके, उसको मॉडिफाई ना कर सके, सो हम डिसेबल के एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। और उसके साथ साथ हमारे पास रीड ओनली का एट्रीब्यूट था। अगर हम सिर्फ किसी को व्यू करवाना चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, तो हम रीड ओनली के एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम HTML फॉर्म्स के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स थे, टेक्स्ट बॉक्स का एलिमेंट था, पासवर्ड का एलिमेंट था, जिसके अंदर जब आप डेटा टाइप करेंगे तो वह इनक्रिप्टेड मार्क्स फॉर्म में मौजूद होगा। हिडन फील्ड, अगर आप चाह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर फील्ड को फॉर्म में मेंशन करें लेकिन यूज़र को डिस्प्ले ना करें, तो आप हिडन फील्ड को यूज़ कर देंगे। चेक बॉक्स हमारे पास मौजूद थे, रेडियो ऑप्शंस मौजूद थे। सो रेडियो बटन जब हम 2 चॉइसेस को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तब यूज़ करते हैं। जब बहुत सी चॉइसेस देना चाह रहे हैं, मल्टीपल ऑप्शन यूजर से सिलेक्ट करवाना चाह रहे हैं, देन हम चेक बॉक्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करवाते हैं। टेक्स्ट एरिया हम प्रेजेंट कर सकते हैं यूज़र को। किसी ड्रॉप डाउन लिस्ट से अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू सिलेक्ट करवाना चाह रहे हैं, फॉर दैट वी हैव सिलेक्ट लिस्ट। एंड उसके साथ साथ हमारे पास सबमिट एंड रीसेट बटन है। रीसेट बटन के प्रेस करने के ऊपर फॉर्म की वैल्यूज क्लियर हो जाएंगी। सबमिट के बटन को प्रेस करने के ऊपर यूजर की इनपुट को देख के लेके ट्रैवल करवा दिया जाएगा टुवर्ड्स सर्वर साइड। इसके अलावा हमारे पास HTML5 के अंदर कुछ नए एलिमेंट्स भी हैं। ईमेल एलिमेंट, डेट, नंबर एंड कलर। ईमेल एलिमेंट इज यूज्ड टू टेक द ईमेल फ्रॉम द यूजर इन द स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ द ईमेल। डेट एलिमेंट पर्टिकुलर डे, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में हमारे पास डेट यूजर से लेने के लिए मौजूद है। नंबर के अंदर हम लोग जस्ट न्यूमेरिक डेटा ले सकते हैं। एंड कलर के अंदर हम जो पर्टिकुलर कलर सेलेक्ट करवाना चाह रहे हैं उसका ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। मूविंग ऑनवर्ड, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट XHTML. XHTML is basically extensible hypertext markup language and XHTML बिल्कुल HTML की तरह है but it is a strict version of HTML. XHTML is HTML that is defined as an XML application. एंड तमाम ब्राउज़र XHTML को सपोर्ट कर रहे होते हैं और XHTML में आप अपने कस्टमाइज टैग मेंशन कर रहे होते हैं और स्ट्रिक्ट नोटेशंस ऑफ टैग्स को मेंशन करने की स्ट्रिक्ट रूल्स मेंशन है। आफ्टर द HTML we have discussed for introduction to CSS. CSS basically stands for Cascading Style Sheet and it is basically a language that is used to describe the presentation style of your HTML pages. आपके पास जो डिफरेंट HTML एलिमेंट्स हैं उनको वेब पेज के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर कैसे रेंडर होना है, कैसे डिस्प्ले होना है, उसके अंदर इफेक्ट्स क्या डालना चाह रहे हैं आप, ये आप CSS की हेल्प से कर सकते हैं। CSS is again a standard and it is uniformly accepted by W3C and all the organization around the world. And using CSS, you can create dynamic effects in your website. CSS also follow the specific set of rules for its styling. The only difference between CSS different categories is that there are different types of CSS: inline CSS, internal CSS and external CSS. अगर आप किसी HTML पेज के अंदर स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं तो आप इनलाइन CSS को यूज करेंगे। अगर आप एक ही वेब पेज के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं तो आप इंटरनल CSS यूज करेंगे और आप हेडर के अंदर अपनी CSS की इंफॉर्मेशन मेंशन कर देंगे। और अगर आप कंप्लीट वेबसाइट के लिए या डिफरेंट वेब पेजेस के लिए स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं तो आप एक सेपरेट फाइल क्रिएट करेंगे जो उसी डायरेक्टरी में मेंशन होगी जिस डायरेक्टरी के अंदर आप अपने HTML पेजेस को रख रहे हैं। उसकी एक्सटेंशन .css होगी और अपनी सारी स्टाइलिंग आप उसमें मेंशन करेंगे। इस तरह आप इंटरनल और एक्सटर्नल CSS को हैंडल कर रहे हैं। जब भी आपने स्टाइलिंग को सेपरेट करना है द बेस्ट वे इज एक्सटर्नल CSS। इसके साथ साथ हमने IDs एंड क्लासेस को देखा। अगर हमें किसी भी HTML फॉर्म के अंदर, वेब पेज के अंदर अगर एक एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना है तो हम उसको ID से असाइन कर देंगे जो रिपीट हो रहा है। लेट्स सपोज एक पेज के ऊपर डिफरेंट पैराग्राफ्स है, सो हम पैराग्राफ 1 के ऊपर कोई स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक यूनिक ID हम उसको असाइन कर देंगे जिसके जरिए हम उसको एक्सेस कर लेंगे।
एंड सिमिलरली हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं और क्लास आईडी के जरिए हम उसको एक्सेस कर लेंगे और उसके ऊपर हम स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू डिक्लेयर द स्टाइलिंग फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। इसके साथ हमने कुछ कॉमन फॉन्ट की प्रॉपर्टीज को भी देखा था, जिसके अंदर फॉन्ट फैमिली है, जिसके अंदर फॉन्ट की डिफरेंट टाइप्स मौजूद है हमारे पास। लाइक हमारे पास टाइम्स न्यू रोमन है, वर्डाना है। फॉर दैट वी हैव स्पेशली डिस्कस्ड अबाउट सेरिफ एंड सैन सेरिफ फॉन्ट फैमिली। सो वन इज यूज्ड फॉर फॉर्मल कोलैबोरेशन एंड रीडेबिलिटी ज़्यादा है, एंड अदर इज फॉर यूज्ड इनफॉर्मल कोलैबोरेशन और उसके अंदर रीडेबिलिटी भी मिनिमाइज्ड है। फॉन्ट की डिफरेंट साइज है, 1 to 16 फॉन्ट के साइज है, एंड फॉन्ट स्टाइल की वजह से फॉन्ट साइज पे भी अपीयरेंस में इफेक्ट हो रहा है। फॉन्ट साइज 1 इज द स्मॉलेस्ट, फॉन्ट साइज 16 इज द लार्जेस्ट। फॉन्ट का वेट है जो उसकी बोल्डनेस को इंक्रीज कर रहा होगा। एंड फॉन्ट के स्टाइल है टाइम्स न्यू रोमन, वर्डाना, कैलबरी। एंड फॉन्ट की वेरिएट है कि फॉन्ट को हम स्मॉल में लिखना चाह रहे हैं, फॉन्ट को हम कैपिटल में लिखना चाह रहे हैं। उसके अलावा हमने पेज लेआउट को देखा था कि जब भी हम किसी वेबसाइट में किसी पर्टिकुलर पेज को लेआउट करना चाह रहे हैं तो हम उसको डिवाइड करेंगे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट। सो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास होम पेज रेलिवेंट है वो हम होम पेज के अगेंस्ट उसको मर्ज कर देंगे। जो यूजर के पेज की इंफॉर्मेशन होगी उसको यूजर के पेज के अगेंस्ट मर्ज कर देंगे। एंड सिमिलरली फॉर अदर पेजेस। दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल दैट वी हैव डिस्कस्ड, और उस एग्जांपल को देखते हुए हमने ये इंफॉर्मेशन मेंशन की थी। सो होम पेज में हमने लॉगिन की इन्फॉर्मेशन डाल दी, यूजर के पेज में यूजर की इन्फॉर्मेशन डाल दी, और हमने देखा था कि एक मिनी सोशल वेबसाइट की एग्जांपल है जिसमें यूजर मैसेज को सेंड कर सकता है, इनबॉक्स में उसको मैसेज आ सकते हैं, मैसेज उसके आउटबॉक्स में सेंड मैसेज आ जाएंगे। सो फॉर दैट हमने ये लेआउट देखी थी। मूविंग ऑनवर्ड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लिक्विड वर्सेस फिक्स्ड डिजाइन। लिक्विड डिजाइन वो है जिसमें हम परसेंटेज मेंशन करके चेंज कर सकते हैं डिजाइन के साइज को, और फिक्स डिजाइन में हमारी विड्थ फिक्स्ड होगी। इसके साथ साथ हमने देखा था डिव टैग को। डिव टैग को यूज करके हम डिफरेंट सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं वेब पेज के अंदर, और उस डिव टैग को यूज करते हुए हम लोग लेआउट डिजाइन कर लेंगे। और फिर हमने कोडिंग टेक्निक देखी थी कि लेआउट्स को हमने डिजाइन से कैसे कोड करना है। ये पर्टिकुलर जो हमारे पास एग्जांपल थी उसके लिए हमने ये स्ट्रक्चर देखा था, साइट मैप, होम पेज, यूजर पेज का जो एसोसिएशन है वो इनबॉक्स, आउटबॉक्स एंड सेंड मैसेज के साथ है। सो ये हायरार्की है, लेआउट है उस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए। देन हमने सीएसएस की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी जो बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रेजेंट करने के लिए होती हैं सीएसएस के अंदर, और इन प्रॉपर्टीज और रिलेटेड फीचर्स जो है इनको हम ग्रुप किया था ताकि हम लोग स्टाइलिंग के मजीद इफेक्ट्स को देख सकें। सीएसएस की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हमारे पास स्केलेबल फॉन्ट्स मौजूद हैं, एंड उन स्केलेबल फॉन्ट्स के जरिए हम यूजर की जो स्क्रीन है उस पर जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहे हैं उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। सो उसके लिए हमारे पास फॉर एग्जांपल जो फॉर्मेट मौजूद था, बॉडी फॉन्ट साइज 150%। सो आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं यूजर, डिक्रीज कर सकते हैं एज पर डिवाइस। सिमिलरली इसको प्रेजेंट करने के लिए स्मॉल, मीडियम, लार्ज के भी मेथड है प्रॉपर्टी के तौर पे। सो ऐसे भी हम फॉन्ट साइज को स्केल कर सकते हैं। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट राउंडेड कॉर्नर्स, बॉक्स शेडोज, ट्रांसफॉर्मेशन एंड मीडिया क्वेरीज। फॉर दैट वी हैव सीन कि हमारे पास कोई भी HTML एलिमेंट है उसको हम 4 कॉर्नर शेप दे सकते हैं, 3 कॉर्नर शेप दे सकते हैं, 2 कॉर्नर शेप दे सकते हैं। सो रेलिवेंट पैरामीटर हम सेंड करेंगे उस मेथड को, और शेप उसके अगेंस्ट 4, 3 और 2 पैरामीटर बन जाएगी। फिर हमने बॉक्स के शेडो को देखा था कि हम शेडो को भी कंट्रोल कर सकते हैं, शेडो को भी कलर दे सकते हैं। और हमने फिर ट्रांसफॉर्मेशंस देखी थी, 2D ट्रांसफॉर्मेशन एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन। इसके साथ साथ हमने CSS3 को देखा था कि CSS3 के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। फॉर एग्जांपल सिलेक्टर के अंदर हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसको प्रॉपर्टी के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हमने बॉक्स फॉन्ट को देखा था। इसके साथ साथ हमने बैकग्राउंड कलर को चेंज करना, बैकग्राउंड के तौर पे इमेज को डिस्प्ले करना, इमेज को एज अ बॉर्डर डिस्प्ले करना, डिफरेंट टेक्स्ट इफेक्ट हमने देखे थे, स्ट्राइक, अंडरलाइन, और 2D के तौर पे स्क्यू करना, रोटेट करना हमने देखा था। 3D में हमने 3 डायमेंशन में X, Y एंड Z में रोटेशंस को देखा था। एनिमेशंस को डिस्कस किया था, हाउ टू एनिमेट जिफ इमेज हम ऐड कर सकते हैं।
एंड कॉलम्स को लेआउट डिज़ाइन की थी हमने टेबल के ज़रिए, और उसके बाद हमने यूज़र इंटरफेस के डिस्कस किया था CSS3 में। फाइनली जो हमने CSS3 में चीज़ डिस्कस की थी, दैट इज़ अबाउट मीडिया क्यूरी, एंड मीडिया क्यूरी इज़ बेसिकली अ मीडिया टाइप that contain one or more expression which resolve to entire true or false. So using the media query we can check many things. क्या for example width and height of viewport, height and width of the user device, orientation कैसे करें यूजर की डिवाइस पे, टैबलेट है, फोन है, लैंडस्केप में करना है उसके अगेंस्ट, पोर्ट्रेट मोड करना है, यूजर्स की स्क्रीन की रेजोल्यूशन क्या है, ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन हम मीडिया क्यूरी के जरिए यूजर की डिवाइसेस के बारे में ले सकते हैं। So this was all about for today's lecture, and in today's lecture we have discussed the summary of all lecture 1 to lecture 15, from introduction to web technologies, then the development process, then the requirement process, then we have discussed about web project management and how to model. We have seen different diagrams, different levels of modeling, then implementation, testing level, purpose of testing, the architecture for the web-based application, 2-tier, 3-tier, N-tier, and what is HTML, how to add links, navigation, image, audios and videos using HTML, how to create tables and forms in HTML, what are different elements and the attributes of elements in HTML forms, and in the end we have discussed about CSS and how to lay out your web pages using CSS and different properties of CSS and CSS3 elements and CSS3 benefits. This was all about for today's lecture. Thank you for today's lecture.